Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. And in the series of soil fertility lecture, today we will discuss about denitrification. And in earlier lectures, we have discussed about nitrogen cycle and different processes occurred in nitrogen cycle such as nitrification, denitrification, volatilization, ammonium fixation, leaching. So we will discuss one by one, and in this series we have discussed about nitrification, and today I'll tell you about denitrification. What is denitrification and how does it take place in soil, and which microorganisms are involved in this process, and what are the factors which affect this denitrification, and what is the impact of denitrification on environment. So in this lecture we will discuss all these things, and this lecture is very important and many questions are asked from nitrogen cycle and nitrification, denitrification, leaching, ammonium fixation and volatilization. So in this context this lecture is very important, so please listen it very carefully. If any doubt or any question you may ask in comment box, और जितने भी डाउट्स होंगे उसके मैं बाद में एक आपको सारे उसके मैं आंसर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो लेक्चर्स के साथ बाद में हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो नाउ टुडे टॉपिक इज denitrification, and as name suggest it is opposite of nitrification. जो नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था कि अमोनियम से नाइट्रेट आयन बन रहे थे, बट दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ जो नाइट्रेट्स बने हैं उनका लॉस होता है। सो लॉस ऑफ नाइट्रेट in the form of gas. So loss of nitrate ion in the form of gas. तो जो लॉस है नाइट्रेट का गैसियस फॉर्म में, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। और ये होता कब है? व्हेन देयर इज वाटर लॉगिंग एंड देयर इज नो ऑक्सीजन इन सॉइल। तो ये कंडीशन कब आती है? व्हेन देयर इज ए हैवी रेनफॉल और हैवी इरिगेशन, देन देयर इज नो एयर इन सॉइल. Then microbes change their respiration. Different type of microbes exist in soil and they start act on nitrate which are present in soil. तो microbes को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उस ऑक्सीजन को लेने के लिए they act on nitrate. तो जो नाइट्रेट में ऑक्सीजन है, this nitrate आयन, ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को माइक्रोब्स यूज करने लगते हैं. And there are different type of microbes which have such type of respiration. Anaerobic microbes are there and some facultative aerobic microbes are there. Facultative में कौन से microbes हैं जो normally तो ऑक्सीजन को respiration में यूज़ करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती है तब जो ये ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हैं. And many bacteria are involved, Pseudomonas, Bacillus, Paracoccus. And some autotrophic microorganisms are also involved, like Thiobacillus denitrificans and Thiobacillus thioperas. तो ये माइक्रोब्स हैं, कई तरह के माइक्रोब्स हैं जो इस डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं. एंड व्हेन दिस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स फॉर देयर रेस्पिरेशन, एंड दिस रेस्पिरेशन कब हो रहा है? जब देयर इज वाटर लॉगिंग, देयर इज नो ऑक्सीजन, देन दिस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू nitrite ion, then further oxygen is consumed, then it is converted into nitric oxide, then further this oxygen is consumed and it is converted into nitrous oxide, and this nitrous oxide is escaped into the atmosphere. तो यहाँ देखिए फर्स्ट नाइट्रोजन लॉस हुआ, then further nitrogen is not available, then this oxygen is used by microbes and nitrogen gas is there and it is escaped. So now we can see that when such type of respiration is there, when microbes are using the oxygen which are present in ion, okay, और ये कब हो रहा है? जब anaerobic condition हो रही है, जब water logging हो रही है, and these are the two form of gas where denitrification occur. तो ये कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. बट जो जनरली जो होता है, नाइट्रोजन गैस का कंटेंट ज़्यादा होता है. सो इन डीनाइट्रिफिकेशन बोथ गैसेज आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन गैस एंड दिस नाइट्रस ऑक्साइड गैस, एंड बोथ are present, but major contribution is of
nitrogen gas. Okay, so this is the major process by which denitrification process take place. तो ये किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व. मैंने आपको बताया कौन कौन से माइक्रोब्स हैं. एरोबिक एनारोबिक माइक्रोब्स, फैकल्टेटिव एरोबिक माइक्रोब्स एंड सम ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये मैंने आपको नाम बताए भी थे, फिर से सुन लीजिए इसको. सूडोमोनास, बैसिलस, पैराकोकस एंड इन केस ऑफ ऑटोट्रॉफिक थायोबैसिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड थायोबैसिलस थायोपैरस. तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है एंड माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व. बट लेकिन केमिकल डीनाइट्रिफिकेशन भी होता है जहां माइक्रोब्स आर नॉट इन्वॉल्व. देयर इज केमिकल रिएक्शन and no involvement of microbes, and this is known as chemodenitrification. Chemodenitrification and also known as chemical denitrification. And the conditions where chemodenitrification occur may be that it react with the ammonium ion, and chemodenitrification occur due to reaction of नाइट्राइट. तो जब भी सॉइल में नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट आयंस आर प्रेजेंट एंड दे रिएक्ट विद अमोनियम आयन, देन देयर केमिकल रिएक्शंस आर देयर एंड दिस गैसियस लॉस इज देयर द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. इसको मैं कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, केमिकल बैलेंस रिएक्शन नहीं, केवल मैं आपको बता रहा हूँ. सो ये जो कीमो डीनाइट्रिफिकेशन होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट. Though nitrite ion is very less in soil. ये जो सॉइल में होता है नाइट्रेट आयंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. सो देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयन इन सॉइल, क्योंकि रैपिड प्रोसेस होता है. मैंने नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में बताया था कि नाइट्रेट आयन कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, इनकी कंटेंट सॉइल में बहुत कम है. लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं यह जहाँ नाइट्रेट आयन डेवलप होता है, क्योंकि जो प्रोसेस में बीच में होता ही है, और उस समय यदि ये रिएक्ट कर जाए अमोनियम आयन से, देन देयर इज गैसियस लॉस. अनदर कंडीशन इज दैट दिस नाइट्राइट रिएक्ट विद द अमीनो एसिड्स. और यहाँ जो है, यहाँ भी ये एक्चुअल में क्या होता है, HNO2 के फॉर्म में रिएक्ट कर सकता है या सीधे आयंस के फॉर्म में रिएक्ट कर सकता है. देन फर्दर देयर इज नाइट्रोजन gas loss is there, and this reaction is known when nitrate ion react with the amino acid group, known as Vance-like reaction. Vance-like, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज Vance-like reaction. सो एक्चुअली Vance-like reaction केमिस्ट्री में क्या होते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं टू डिटरमाइन द एमाइन ग्रुप. एमाइन ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को हम Vance-like reaction कहते हैं. बट हेयर इन सॉइल amino acids are there because organic matter is there, so amino acids are there and then react with the nitrogen. Another may be that this nitrite may be react with the lignin and may react with the phenol, and these groups are present in organic matter, and then in such case there is loss of nitrogen. Okay, another is that maybe there is a spontaneous decomposition of नाइट्राइट आयन. तो ये जो HNO2 होता है, दिस HNO2 भी डिकम्पोज कर जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. देन इन दिस केस NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो ये भी एक प्रोसेस है कीमो डीनाइट्रिफिकेशन का. अनदर में भी दैट नाइट्राइट आयन रिएक्ट विद द मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल जिनमें वैलेंसी चेंज होती है, लाइक मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर. देन सिंस ये किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रेट आयन, नेगेटिव आयन, एंड देन नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन इज देयर. सो वी कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीमो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इन सॉइल, बट this chemo denitrification take place due to presence of this nitrite ion, and nitrite ion are very less in soil. That's why their contribution in denitrification is very less. तो जो मेजर जो लॉस है वो कहाँ होता है, इस रिएक्शन से होता है अंडर एनरोबिक कंडीशन. तो यहाँ एनरोबिक कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो सीधे नाइट्रेट आयन रिएक्ट कर रहे हैं.
लेकिन इनसे जो गैसेस लॉस है वो बहुत कम है, लेकिन ये होता है तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, बायोलॉजिकल और वी कैन से बायोकेमिकल डीनाइट्रिफिकेशन एंड कीमो डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये तो मैंने आपको बताया व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। देन what are the factors which affect this denitrification? So first, denitrification is start when there is oxygen deficiency in soil. So when there is oxygen deficiency, जो मैंने लेक्चर में बताया था, then microbes start to use oxygen which is present in iron. तो ये ऑक्सीजन डिफिशियंसी कब होगी? वाटर लॉगिंग से। तो फर्स्ट फैक्टर इज वाटर लॉगिंग इन सॉइल। इफ वाटर लॉगिंग इज देयर, देन ऑक्सीजन escape into the atmosphere, and in this case anaerobic condition exists, and microbes which are anaerobic type, they use this nitrate ion. Another facultative aerobic also use this oxygen which are present in iron, and this process take place. If there is no water logging, then this denitrification doesn't take place. केवल वहाँ क्या होगा? कीमो डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है, but its contribution is very less. A second factor is aeration. Aeration is linked with the वाटर लॉगिंग और वाटर कंटेंट, क्योंकि पोर्स में क्या होता है? तो वाटर होता है या एयर होती है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा उसके अंदर एरेशन क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। एंड दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय एनारोबिक माइक्रोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोबिक माइक्रोब्स। तो ऑक्सीजन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल ऑक्सीजन कंटेंट इन सॉइल इज 20%। तो 20% जो है सॉइल में ऑक्सीजन रहती है, बट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड टू 10%, then there is significant denitrification. तो इन जनरल अगर 20 to 18 हो जाए या 17 हो जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, तो बहुत ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होता है। बट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड बिलो 10% से कम जब ऑक्सीजन हो जाएगी तो डीनाइट्रिफिकेशन बहुत फास्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 16 या 17% ऑक्सीजन तो डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, वहाँ भी होता है। एंड इन सॉइल, इफ वेल एरेटेड सॉइल इज देयर, अगर सॉइल के अंदर बहुत एरोबिक कंडीशन है, बहुत अच्छी मेंटेन है, स्टिल देयर आर सम साइट्स वेयर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, माइक्रो साइट्स आर देयर। फिर भी सॉइल में कुछ ऐसे साइट्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ऐसी साइट्स होंगी जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, और जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो डिमांड है, जो बायोलॉजिकल डिमांड है, वो बहुत कम रहती है। मतलब वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम रहती है वहाँ, और माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए। चाहे कितनी अच्छी एरेटेड सॉइल है, कुछ ना कुछ साइट्स जरूर रहती हैं कि जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो वहाँ पे भी क्या होगा? ऑन दैट साइड डीनाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि अगर सॉइल बहुत एरेटेड है तो उसमें डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, उसमें डीनाइट्रिफिकेशन होगा, लेकिन ऐसी साइट्स पे होगा जहां ऑक्सीजन बहुत कम है। तो सॉइल कोलाइट्स के अंदर हो सकती है, पार्ट्स में हो सकती है। तो ऐसी साइट्स होती हैं जहां बहुत कम ऑक्सीजन होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन कंटेंट जब 10% से कम होगा, इफ इट इज बिलो 10%, देन देयर इज रैपिड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये एरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनदर इज सॉइल पीएच. Soil pH is very important because this denitrification is carried by bacteria, and bacteria are very sensitive to pH because they work on neutral to slightly alkaline condition. तो यहाँ pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो नॉर्मल माइक्रोब्स नहीं है, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंड दे आर कॉल्ड डीनाइट्रीफायर। तो यहाँ जो pH जो रहती है, पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है, अगर पीएच एसिडिक है, बहुत एसिडिक है, देन माइक्रोब्स विल नॉट सर्वाइव, दीस बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव एंड देयर पॉपुलेशन विल बी वेरी लेस, बहुत कम पॉपुलेशन होगी। तो ये प्रोसेस नहीं होगा। इफ पीएच इज इंक्रीज्ड, सपोज इट इज 5.5, तो क्या होगा? यहीं तक ही प्रोसेस होगा। इफ पीएच इज 5.5, लेस देन 5.5, तो यहां तक ही प्रोसेस होगा। तो उस कंडीशन में NO, this nitric oxide will exist. Now pH is further increased. अब further increased होके माना pH यहाँ आ जाता है 5.5 to 6. Then this N2O gas will released, क्योंकि अब क्या होगा? कुछ माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब तक pH बहुत कम रहेगी, 5.5 तक रहेगी, ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोब्स एक्टिव नहीं है। जब pH थोड़ी 5.5 पे आती है तो माइक्रोब्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे, तब ये कन्वर्जन स्टार्ट होगा, देन NO गैस विल एक्यूमुलेट। अब पीएच फिर हमने बढ़ा दी, तो अब क्या होगा? माइक्रोब्स की एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो अब इफ पीएच इज 5.5 to 6, देन N2O गैस विल एक्यूमुलेट।
अब pH हमने और बढ़ाई, मान सपोज pH इज मोर देन 6, देन N2 गैस विल रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ pH। तो हम ये देखते हैं कि अगर pH इज मोर देन 6, देन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस। और जैसे जैसे pH कम होती जाएगी, ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो लो pH पे सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन अगर pH बहुत ज़्यादा हो जाए, इफ़ इट इज़ मोर देन 8.5, तब भी ये प्रोसेस नहीं होगा। तो भी हाई pH पे बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, तब भी ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस चेक हो जाएगा। तो जो ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, कहाँ होगा, 6 से, जैसी pH 6 से ज़्यादा होगी और 7.5 तक जाएगी pH, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। और जब 8.5 से ऊपर जाने लगेगी pH, फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ सीज हो जाएगी, हाई pH इज डेट्रीमेंटल टू बैक्टीरिया, देन फर्दर ये प्रोसेस नहीं होगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ pH। अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर, एंड द बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन, जिसको हम डीनाइट्रीफायर्स कह रहे हैं, दे आर थर्मोफिलिक इन नेचर। तो देखिए थर्मोफिलिक नेचर है, तो इनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मीजोफिलिक होते तो मीडियम टाइप की टेम्परेचर चाहिए होता, 25 to 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर साइक्रोफिलिक होते तो मतलब ठंड होने चाहिए होती, लो टेम्परेचर चाहिए होता, 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बस। बट दीज डीनाइट्रीफायर्स आर थर्मोफिलिक, तो इनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज हाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब अगर सॉइल बहुत वार्म है और बायोलॉजिकली एक्टिव है और अचानक से उसमें बहुत तेज बारिश हो जाए, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और विंटर सीजन में क्या है, टेम्परेचर लो रहता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, बहुत स्लो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि समर सीजन में ज़्यादा होगा या विंटर सीजन में ज़्यादा होगा, या आफ्टर रेनफॉल होगा या बिफोर रेनफॉल होगा। तो यहाँ देखिए, जो हमने नाइट्रीफायर्स पढ़ा था उसमें 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड थी, वो मीजोफिलिक टाइप के बैक्टीरिया थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, थर्मोफिलिक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए, बैक्टीरिया है, उसको ग्रोथ के लिए कार्बन चाहिए, तो ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतनी उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो ऑक्सीडाइजेबल होता है, कहाँ होता है, प्लांट राइजोस्फीयर में, रूट जोन दैट इज नोन एज राइजोस्फीयर। उसको मैं पहले बता चुका हूँ, राइजो मतलब रूट से रिलेटेड है, स्फीयर मतलब उसका चारों ओर का एरिया। तो रूट राइजोस्फीयर में क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन इज मोर बिकॉज रूट ऑक्सीड्यूट्स आर प्रेजेंट एंड डेड टिश्यूज, रूट टिश्यूज आर देयर, सो दे सप्लाई ऑक्सीडाइजेबल कार्बन। सो इन रूट जोन देयर इज मोर माइक्रोवेल पॉपुलेशन। आप सॉइल में कहीं भी देख लीजिए, तो रूट जोन में सबसे ज़्यादा माइक्रोवेल एक्टिविटी होगी, चाहे कोई सी किसी तरह के बैक्टीरिया हो। अब रूट जोन है, पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग हो गई है, तो डेफिनेटली डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, वहाँ फास्ट होगा। सो अनदर फैक्टर इज सप्लाई ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सप्लाई ऑफ दिस नाइट्रेट। इफ नाइट्रेट्स आर मोर, डेफिनेटली डीनाइट्रिफिकेशन विल बी मोर। देन अमोनियम इज मोर, देन डीनाइट्रिफिकेशन विल बी मोर, क्योंकि अमोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे, और नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन में। अगर सॉइल में दिस नाइट्रेट अगर नहीं है तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा ही नहीं। अगर रिड्यूस कंडीशन हो जाए और अमोनियम एज सच रहे, तो वो नाइट्रेट में तब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फिर डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। तो सप्लाई ऑफ दिस नाइट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर रिड्यूस कंडीशन है, डीनाइट्रिफिकेशन की चांस हमें लग रहा है, ऐसा हो सकता है, तो हमको वहाँ अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालने चाहिए, नाइट्रेट कंटेनिंग हमें नहीं डालने चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या होगा, नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रेट फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी होती है कि नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके बाद ओवर इरीगेशन कर दें या हैवी रेनफॉल हो जाए, तो ये जो नाइट्रेट जो बने हैं सॉइल में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस नाइट्रोजन गैस, तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा। तो लेकिन अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते हैं और बारिश हो जाए तो ये चूंकि नाइट्रेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, तो जब नाइट्रेट नहीं बनेगा तो डीनाइट्रिफिकेशन भी नहीं होगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम ऑन डीनाइट्रिफिकेशन। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्लांट फैक्टर। अब प्लांट भी डीनाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं डीनाइट्रिफिकेशन को और घटा भी सकते हैं। कैसे, इसको देखते हैं कि कैसे जो है प्लांट्स हाउ इंक्रीज डीनाइट्रिफिकेशन। एक्चुअली प्लांट्स रूट्स आर देयर एंड दीज प्लांट रूट्स कंज्यूम ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन डिफिशियंसी इज देयर इन रूट जोन।
इफ प्लांट्स आर रेस्पायरिंग एट वेरी हाई रेट, बहुत एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज हो रही है, रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा है रूट का, देन दे कंज्यूम ऑक्सीजन एट वेरी हाई रेट एंड देन एनरोबिक कंडीशन एग्जिस्ट इन दिस रूट जोन। और जैसी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी डीनाइट्रिफिकेशन स्टार्ट। तो एक इस वे से डीनाइट्रिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं प्लांट अगर इफ देयर ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट इज वेरी हाई। अनदर फैक्टर इज दैट इफ प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर, रूट एक्सिड्यूट्स और टिश्यू है, डेड टिश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो उस केस में भी क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है। सेकेंडली क्या हुआ, जो डीनाइट्रिफाइड से उनको ऑर्गेनिक कार्बन मिल गया रूट से, तो इस वे से क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हो सकता है। अनदर वे इज दैट प्लांट कैन रिड्यूस डीनाइट्रिफिकेशन, कि प्लांट की प्रेजेंस में, कुछ प्लांट की प्रेजेंस में डीनाइट्रिफिकेशन कम हो सकता है। ये हो सकता है इफ प्लांट्स आर कंज्यूमिंग वाटर एट ए वेरी फास्ट रेट, नॉट ऑक्सीजन। अगर वो वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो पोर स्पेस में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा। अनदर कंडीशन इज दैट दीज रूट्स आर एब्जॉर्बिंग नाइट्रेट आयंस। अब नाइट्रेट आयंस का ही अपटेक बहुत तेजी से कर लें, जब नाइट्रेट्स ही नहीं रहेंगे सॉइल में तो डीनाइट्रिफिकेशन भी नहीं होगा। तो ये फैक्टर्स थे जिनसे जो है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अफेक्ट होता है। तो अब ये तो हमने जान लिया कि ये डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है और कौन कौन सी कंडीशन है, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। जब मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि हर प्रोसेस हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, सबकी इंपॉर्टेंस है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है, डीनाइट्रिफिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। नंबर वन डिसएडवांटेज इज दैट इफ वी आर यूजिंग दिस नाइट्रेट आयन एज अ फर्टिलाइजर, इट इज लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो भी हमने फर्टिलाइजर डाला वो लॉस कर गया नाइट्रोजन गैस में, तो फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी इज पुअर, नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी इज पुअर एंड प्लांट ग्रोथ इज अफेक्टेड। तो हमारा जो है लॉस हो रहा है, मनी का भी लॉस हो रहा है, फर्टिलाइजर का भी हो रहा है, प्लांट ग्रोथ का भी लॉस हो रहा है। अनदर इज दैट दिस नाइट्रस ऑक्साइड गैस, इट इज ग्रीन हाउस गैस। अब जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है तो ग्रीन हाउस गैस है, अब आप ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट जानते हैं, उसके लॉस हो रहे हैं। सेकेंडली इट डिस्ट्रॉय द ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसके साथ रिएक्शन करके ओजोन को खत्म कर देती है, O3 ओजोन गैस को। अब ओजोन गैस का क्या वर्क है, ओजोन गैस क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उस कारण से अर्थ पे हमारा अल्ट्रावायलेट रेज नहीं पहुंच पाती है। अब इसको ये समझिए कि ये हम कहाँ रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर, देन दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज मीजोस्फेयर, और फर्दर जो हाइट पे क्या है, ट्रोपोस्फेयर। सो ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, और जो यूवी रेडिएशन, दैट यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस ओजोन एंड दैट्स व्हाई यूवी रेडिएशन इज नॉट रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस। सो ओजोन मस्ट बी प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर टू अवॉइड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, बहुत हार्मफुल होता है। तो एक तरह से ये ओजोन लेयर हमारा प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है। तो अब क्या होगा, जब ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, देन दिस नाइट्रस ऑक्साइड डिस्ट्रॉय दिस ओजोन गैस। तो अब जब ओजोन गैस डिप्लीट कर जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ आएगा, अर्थ पे आएगा, और इससे फिर हार्मफुल इफेक्ट होंगे, प्लांट्स पे होंगे, एनिमल्स पे होंगे, एनिमल्स पे होंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बट सम एडवांटेजेस आर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट अगर ये नाइट्रेट सॉइल में बना, जो मैंने पिछले को बताया था नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, एंड इट रिमेन इन सॉइल, और प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, बहुत तेजी से बन रहा है नाइट्रेट, तो क्या करेगा, लीच करेगा, लीचिंग होगी। लीचिंग से क्या होगा, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा, ड्रिंकिंग वाटर में आएगा, मैंने आप जैसे बताया था मैथ हीमोग्लोबिनिया होगी, ब्लू बेबी डिसीज होगी, एंड इफ कंसंट्रेशन इज मोर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर देन इट इज अनसेफ। तो नाइट्रेट आयन यदि ड्रिंकिंग वाटर में गया तो हमारी बॉडी को भी हार्म करेगा। यूट्रिफिकेशन होता है, ये क्या करता है, नाइट्रेट आयन्स किसी पॉन्ड में चले जाएंगे, किसी रिजर्वेयर में चले जाएंगे, वहाँ नाइट्रेट आयन्स को कौन यूज़ करेगा, एल्गी यूज़ कर लेंगे, एक्वाटिक प्लांट यूज़ करेंगे, तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो ऑक्सीजन को, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो जिसमें फिश वगैरह होती है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनकी ग्रोथ हो जाती है। नाली वगैरह में जाते हैं तो वहाँ एल्गल ब्लूम हो जाता है, इतना ज़्यादा एल्गी हो जाती है तो नाली वगैरह सब चोक हो जाती हैं। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो मैंने पिछले ही बताया था आपको। तो ये इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज ये है कि नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो लीचिंग नहीं हो पा रही है,
और ड्रिंकिंग वाटर की जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम वो भी नहीं हो पा रही है, और यूट्रिफिकेशन भी से बच जा रहा है। तो देखिए सारे प्रोसेस लिंक हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई डीनाइट्रिफिकेशन बढ़ा दीजिए, डीनाइट्रिफिकेशन बढ़ेगा तो फिर इसकी प्लांट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बैलेंस प्रोसेस ये एक नेचुरल फील्ड में रहते हैं। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस था नाइट्रोजन साइकिल का। और आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वोलेटिलाइजेशन लॉस भी होता है गैसेस लॉस में, अमोनियम फिक्सेशन होता है। तो इसको एक धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।